अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी 99 और मैं हूं आपका होस्ट आरिफ नजमी। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं आपके पास नए नए टॉपिक के साथ आता हूं। आज मेरा मकसद कंबाइन मौजू है जिसका नाम है महंगाई, बेरोज़गारी, नौकरियां, लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, गैस का ना आना इतनी सर्दी में। तो इसके बारे में बात करेंगे और लोगों को कमेंट्स जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके लिए क्या कर रही है, क्या काविशें कर रही है। इसके बारे में लोगों के कमेंट लेते हैं कि लोग कितना मुतमिन हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी से। हाँ जी, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਜਾਦ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਕੋ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਕ ਅਵਾਨ ਕੋ ਤੰਗ ਨੇ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। नहीं क्या मतलब है आपका? मैंने आपको क्या तंग किया? ਓਏ ਏਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ, ਇਹ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ। नहीं तो लोग जो हैं वो कुछ लोग खुश भी तो हैं ना, इस हुकूमत से तब्दीली चाहते थे ना। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ही कोई नहीं। चलो ये बात कर लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ लोगों से पूछ लेते हैं कौन आपके साथ है कौन हमारे साथ ਚਲੋ है। ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲੀ ਪੀਦੇ ਪੀਲੀ ਆ ਰਹੀ है। समझते हो? ये हालात मुल्क के कैसे ने? बाचो साफ करो आप। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल शकूर। शकूर भाई क्या कहना चाहते हैं महंगाई के बारे में आप? सर जी मैं महंगाई के बारे ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੁੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੀ ਏਡੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ 2500 ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? तनवीर हुसैन। तनवीर भाई, ये इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप कितने मुतमिन हैं इस वक्त के हालात से? इस वक्त बिल्कुल हालात जीरो ने, कोई एक टके का काम नहीं हैगा। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਚੁਆਨੀ ਭਾਈਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰੋਂ ਖਾਣਾ ਦਰਾਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਨਿੱਕੀ ਢੇਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ। ਕਮਾਂਡ ਲਏ ਆ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਿੰਨ ਵਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਾਣ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਫੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਸ 15-16 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ अल्लाह माफ़ करे कि इतों तक नहीं पहुँचा। सर आप कारोबारी आदमी हैं, आप हमें ये बताएं कि ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह है या गैस की लोड शेड? आपके कारोबार में किस चीज़ की इफेक्ट हो रही है? हर चीज़ की हो रही है। लोहा माफिया बहुत ਵੱਡਾ है। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਝੂਠ ਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸੀ 15 ਕਿਲੋ, ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ? क्यों छड़िया? दसो ना क्यों छड़िया? यानी कि आपके कहने का मकसद है सब कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इख्तलाफात लेकर चल रही है, अवाम के बारे में कुछ नहीं कर ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी कि पानी भी गंदा आ रहा है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 16-17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਅੱਜ 26-27 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 600 ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਚੋਰ ਸਪਾਈ ਚੋਰ ਸਪਾਈ ਚੋਰ ਸਪਾਈ। 16 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਚੋਰ ਸਪਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਦਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8-10-15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़े तरले मिन्नतां करके तो फिर जाके काम कर। कितने ने लोग हैं पानी तो बगैर है कड्ढा ना एक मिनट निकलता है इन्हां दा। मियाँ साहब ये बताओगे, ये जो मोदी सरकार ने कश्मीर पर जुल्म करने के बाद पूरे भारत में जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है दफ़ा 44 नाफज कर दी है और लोगों को घरों से निकाल कर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि देखिए मेरी बात सुने कि मोदी के पास और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक मुसलमान कौम है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उधर भी मुसलमान है, जो कलमा गो हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो जहाँ जहाँ भी होंगे उनके उसमें ईमान का जज्बा है। हर बंदा जहाँ भी आएगा जहाँ भी रहेगा उसमें ईमान का जज्बा है, और वो मुसलमान को ही पकड़ सकते हैं और किसी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मुसलमान जुर्रत करता है, बहादुर है वो। अच्छा, इस वक्त हमें एज ए मुस्लिम, एज ए नेशन हमें क्या करना चाहिए? हम इस वक्त यहाँ पे हम ये तो बात यह है कि हमारे जो हुक्मरान है उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें। हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम इत्तेहाद करें, पूरी 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी, हर मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनके साथ हैं। एक दफ़ा मोदी आए तो सही, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो गली गली कोने कोने में बच्चा बच्चा हर जगह पे गाजी लंदी शहीद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। देखिए ना, कश्मीर में 6 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, लोग बहुत परेशान हैं, दवाइयों के लिए मर रहे हैं, खुराक के लिए मर रहे हैं, क्या कहें? ये तो भाईजान उनको चाहिए ना, ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो जाके बात करें, जनरल असेंबली में बात करें, उधर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बात करें। इनमें बात करने की जज्बा ही नहीं है, बात करने की हिम्मत ही नहीं है। अपनी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे इस महंगाई के दौर में? मैं अपनी गवर्नमेंट को कोई पैगाम नहीं देना चाहता। इतनी घटिया, इतनी गंदी ये पीटीआई की हुकूमत आई है कि इससे पहले आज तक कभी इतने हालात ख़राब नहीं देखे। हर बंदा अपने लिए जंग लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने पेट के लिए लड़ रहा है।
हर बंदे को, किसी को अब किसी से कोई लेना देना नहीं अच्छा, है। आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं आप, लोगों को कोई सहूलत मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली? गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल भाईजान रही। अगर 1.5-2 सालों में इन्होंने कुछ नहीं ना दे सके ना, ये कुछ नहीं, सिर्फ गरीब आवाम को मार रहे हैं, मर रही है आवाम, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। कल का वाकया आप सुन लें कि कराची में जब एक बेटी ने कहा कि मैंने गर्म कपड़े लेने हैं, तो बाप के पास पैसे नहीं थे तो उसने खुदकुशी कर ली। ये डूब मरने का मुकाम है ना हमारे हुक्मरानों के लिए। ये मदीना रियासत नहीं है, ये रियासत मदीना नहीं है, मदीना रियासत में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गोरा कल्चर चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, ये जो मदीना गोरे करते हैं रियासत थी, इसको खराब कर दिया गया। इससे तो बहुत पहले बेहतर थी, जी बहुत पहले बेहतर थी। लोगों को पता था, अल्लाह माफ करे, इतनी खुदकुशी नहीं हो रही थी। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। देखिए असल में कोई भी है ना, है। अदारे काबिल एहतराम है, जितने भी अदारे हैं, लेकिन अगर अदारों ने इन्हें सपोर्ट किया है ना, इसे कुछ करके दिखाना चाहिए था। लेकिन ये नालायक है। अगर नालायक को नालायक कहते हैं तो वो लड़ता है। ये नालायक है, नालायकी मान ले भाई, गलती मानने वाला बड़ा इंसान है। नालायकी मान छोड़, देख हर बंदा कहता है, दूसरी लोग पार्टी के लोग कहते हैं, शहबाज शरीफ कहता है मुझे आने दे, अगर 3 माह में सब ठीक ना हो गया तो बेड़ा गर्क, हम उससे भी बुरा कहेंगे। लेकिन तूने तो बुरे सारे काम ही बुरे किए ना। जी नाज़रीन, ये एक फैक्ट्री थी स्पेयर पार्ट की, तो इनका कहना था कि आज से पहले मेरे पास कोई 100 के करीब मुलाजम काम कर रहे थे, और आज गिनती के चंद एक लोग रह गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि कारोबार दिन ब दिन डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। इनके जज्बात आपने सुने, इनकी बातें आपने सुनी, दुख तो होता है, चूँकि ये जो लोग गरीब लोग इनके पास लेबर में काम करते हैं, अगर ये उनको काम पे नहीं लगाएंगे तो उन गरीबों का चूल्हा कैसे जलेगा? ये सोचने की बात है, ये गवर्नमेंट को सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। आपका नाम सर? मलक नदीम। मलक नदीम साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, जी जी। सर्दी के मौसम में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, कारोबारी हालात कैसे जा रहे हैं, कुछ कमेंट करेंगे आप? सर कमेंट क्या करें हम, आपको हालात ही ऐसे कर दिए हैं इमरान खान साहब ने। बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, जब पानी आता तो गंदा आता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं मैं हमारे। तो कहना बनी गल ना, चलिए सारे जने ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਗੈਸ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। उस तरह की गल समझ नहीं आनी। नहीं, आपका कारोबार मतलब किस हद तक डाउन जा रहा है, गैस की वजह से या बिजली की वजह से? या बिजली की वजह से भी कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लोहा इतना महंगा हो गया है कि हमें अफोर्ड ही नहीं करना। गाहक को कहते हैं कि यार ये रेट है, वो कहता है कि यार हम तुम्हें क्या, ये मुझे ये रेट मिल रहा है, हम किधर जाएँ। यानी कि आज से कुछ अर्सा पहले कारोबार ठीक चल रहा था? हाँ जी हाँ जी, मेरे पास 7-8 लड़के थे। अब ये एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, सब लड़के फारग हो गए हैं। तनख्वाहें नहीं पूरी होती, क्या करें, खर्चे नहीं पूरे हो रहे? खर्चे नहीं पूरे हो रहे सर। आप अपनी गवर्नमेंट को कोई इस वक्त पैगाम देना चाहते हैं? और सर ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम सर? मोहम्मद सईद। सईद भाई, इस वक्त ये जो कारोबारी हालात जा रहे हैं, आप रक्षा चलाते हैं, मुतमईन हैं आप? गैस बिजली हालात बहुत डाउन है। क्यों? सुबह के निकले हुए अभी तक 250 रुपये पकड़ा सारा। अच्छा, ठीक है, 200-300 की गैस डलनी, 400 की गैस डल जानी है। गैस सही मिल रही है, मकबूल मिल रही है? नहीं, गैस भी कहते मकबूल मिल रही है, वो लैब में लगना पड़ता है। अच्छा, समझ गए? गैस महंगी हो गई है क्या? बहुत महंगी, 170 रुपये किलो गैस है। पहले कितने के लेते? पहले 110 रुपये किलो थी, अभी 170 रुपये है। अच्छा, 60 रुपये महंगी, कहाँ से लाए? 60 रुपये है महंगाई अभी इतनी की हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं हम? ये गवर्नमेंट कुछ करेगी तो तब है ना। इनको जो मर्जी कहते रहे, ये नहीं सुनती। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਾ ਮੁੰਡਾ अब भाईजान हर महीने बिल वध के आइंदा है, गैस का बिल वध के आइंदा है। हाँ जी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी।
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਭਾਜੀ ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 200 ਨੂੰ ਪੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। लो जी, बहुत शुक्रिया। ताबेदार अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? एजाज हुसैन शाह। शाह जी, इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं जी, महंगाई के, पेट्रोल बिल्कुल। बढ़ रहा है, जी, गैस आ नहीं रही, बिल बढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल। लोड शेडिंग हो रही है, बिजली आ नहीं रही, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हमारे इलाके में ना गैस आ रही है, बिल बेशुमार आ रहे हैं, पानी जो 2-3 महीने से इतना गंदा आ रहा है, खुद आके देख ले, ये हुकूमत देखे इनके कैंडिडेट को, जो इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, चेयरमैन बैठे हुए हैं, कई बार कंप्लेन की है, कोई बंदा नहीं सुनता, किसी बंदे ने कोई बात नहीं सुनी आज तक, ना कोई देखने आया है। जाके देख ले, इतना गंदा पानी है, 2 महीने से बदबू पानी आ रहा है। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। हाँ, पानी भी खड़ा है, गटर बंद है सारे आबादी मुकम्मल कितनी तौर ਤੁਹਾਡੀ? आबादी बेशुमार है। ਤੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ। और सारा पी के देख ले। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਰਕਾਨ हाँ करा जी। ले घुट पी के। हाँ जी, नहीं जरकान की तो कपड़े नहीं धो सकता बंदा। अच्छा, कपड़े, यानी हाँ कि जी। काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। जी, काफ़ी बर्तन नहीं धो सकता, आप- कपड़े नहीं धो आपने सकता। वासा को पीने कंप्लेन के- की है? वैसा को काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है, कोई बंदा नहीं सुनता। दूसरी बात, सफाई वाले हैं, वो इतनी गंदगी फैली हुई है, खुद आके कोई हुकूमती नुमाइंदा आके देखे कि इतना बुरा हाल हुआ है जितना कोई हिसाब नहीं, सारा नहीं, मरने क्यों? का। कचरा उठाने वाला कोई नहीं कोई आ रहा? बंदा नहीं आता कचरा उठाने वाला। अच्छा, हाँ जी, तो जी। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि हम महंगाई तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो गंदा पानी तो कम से कम रोके इसको। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ साफ ਨਹੀਂ करें। ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਡੀਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। चलें ठीक है, SDA तनख्वाह देखो। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कचरा उठाना। हम यही जो जाज भाई ने कह दी, ये बातें यही हैं कि गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी बच्चे पीते हैं, कपड़े नहीं कैसे धो सकते कपड़े नहीं धो बंदा। सकते, बदबू आती है कपड़ों में से। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? आप पैगाम क्या देना चाहते पैगाम यही है कि ये गंदा पानी तो कम से कम साफ आना चाहिए घरों में, हैं? अच्छा, गैस आनी चाहिए। गैस तो कितनी देर से पानी गंदा आ रहा ये तकरीबन 6 महीने से आ रहा है। है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तकरीबन कोई 6 माह हो गए हैं, पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है इधर न्यू शाद पार्क गली में। अच्छा, तो वज़ू करने के लिए साफ़ पानी नहीं है, हेपाटाइटिस हो रही है लोगों को, इतनी बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं। हाँ, बोतल में जो है ना पानी, अभी भी हम उनको 2-3 दफ़ा बोतल में डाल के ले गए हैं, उनको दिखाया। कराने के लिए। हाँ जी, इतना गंदा पानी है, बहुत बदबू आती है उसमें पानी में। वज़ू करने के लिए भी जो पानी इस्तेमाल नहीं है वो। नहीं कर कौन सा दफ्तर आपको लगता है बासा का? इधर वो जो है बड़े मियाँ दरस, अच्छा, बड़े मियाँ दरस वाला जो है वो लगता है। अच्छा, वही लग रहा है। वही लगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਡਏ ਆ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। अच्छा, कचरा उठाने वाला कोई नहीं आ रहा? ਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਕਚਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਗਟਰ ਕਢਾਈ ਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੇ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ बहुत शुक्रिया। उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। और कोई गटर का ढक्कन टूटा हुआ है, वो कह रहे हमारे पास नहीं है। अच्छा, 2-3 दफ़ा मैं उनके पास गया हूँ, तो पैसों की डिमांड करते हैं? नहीं पैसे वगैरह तो नहीं उन्होंने मांगे, वो कह रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। जी नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको इस इलाके के ये जो हालात हैं, ये जो जगह इतनी इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, अगर किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें सैलरी वगैरह नहीं मिल रही। गलियों में, बाज़ारों में, जहाँ तक ये कैमरा जा सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.